A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Samita Parigre, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 10, and we are reading Chapter 4, that is Carbon and its Compound. Okay, this is the fourth part. Alright, I have already completed three particular parts of this chapter. So, if you are new to this particular chapter, you may go to the playlist, check it out, and watch the other three. And if you're very new to this particular channel, then you can go to the playlist, check out the series of topics that we all have covered. Okay, so and if you like it, don't forget to like, share, and subscribe. Okay, so let's see what we're going to discuss today. But yes, before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so without wasting any further time, let's see what we're going to discuss today. Today we are going to discuss covalent bonding of N, that is nitrogen, O is oxygen and hydrogen, and the polarity, and melting point, boiling point, and electrical conductivity. So these are the two topics that we are going to cover today. Okay, so without wasting any further time and any delay, let's start. The first thing is covalent bonding. Now, in the previous class, we have already covered what is covalent bonding, right? We have covered the topic of covalent bonding of that of nitrogen, oxygen, hydrogen. So यहाँ पे और भी पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग को ही हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे क्या है इन अमोनिया दैट इज NH3 तो NH3 that is bonding between nitrogen and hydrogen atoms okay so in NH3 there are three hydrogen atoms that is being paired with one nitrogen atom right okay so the three hydrogen atoms share one electron each with the nitrogen atom तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन जैसे कि आप देख रहे हो वन पर्टिकुलर नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हुई है तो हाइड्रोजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर दैट इज 1 सो यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे रख रहा है ठीक है ग्रेट नाउ एज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन विल टेल मी इट्स 8 ओके 8 राइट तो 8 में क्या होता है कि कितना होता है बताओ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इट्स 7 नॉट 8 तो 7 में क्या हो रहा है 7 में हम क्या कर रहे हैं बताओ 7 में we can write the electronic configuration as we already know so it will be 2 and 4 2 or 5 or what 1 2 3 4 5 yeah 5 so it will be 2 and 5 so the electronic as the atomic number of protons is of nitrogen is 7 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 एंड 5 तो मेरा आउटर शेल में 5 हो गया और मेरे पास तीन हाइड्रोजन है तो तीन हाइड्रोजन क्या करेंगे अपना जो इलेक्ट्रॉन एक एक है उसको शेयर करेंगे ठीक है अब अपना शेयर कर रहे हैं जैसे कि पहले पिक्चर में आप देख रहे हो वो शेयर कर रहे हैं एक हाइड्रोजन जो है शेयर कर रहा है दूसरा हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है तीसरा हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है तो ऑलरेडी मेरे नाइट्रोजन के पास जो था वहाँ पे क्या था ऑलरेडी 5 थे आउटर शेल में अब तीन लोग अगर शेयर कर रहे हैं तो ऑक्टेट रूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो चुका है कि नहीं हो चुका है बताओ अगर एक हाइड्रोजन 1 दे रहा है दूसरा हाइड्रोजन यानी तीन टोटल मिल गया मेरे पास ऑलरेडी 5 था अब 3 हो गया यानी 8 हो गया यानी मेरा जो दो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है वो ऊपर दो पर्टिकुलर एटम्स खाली हैं ठीक है लेकिन बाकी जो तीन मेरे नाइट्रोजन के हैं उन्होंने बॉन्डिंग कर ली हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे NH3 की बॉन्ड बन गई और यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिल गया यानी कि नाउ माई NH3 इज स्टेबल आई हैव टू मेक 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया दो दो के साथ ठीक है टू टू हो गया उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल मिल गया उसको भी जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो मिल गई और नाइट्रोजन में जो 5 एटम्स थे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर शेल में उसमें भी तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके ट्रिपल बॉन्ड बना नॉट ट्रिपल बॉन्ड सिंगल 3 सिंगल H बॉन्ड्स बनाया और वो भी ऑक्टेट रूल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया उसको नाउ अब यहाँ पे क्या हो गया तीन तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का तीन एक NH 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 यानी NH3 वेरी गुड नेक्स्ट अमोनिया हैज़ अ लोन पेयर अभी तीन पर्टिकुलर जो पांच पर्टिकुलर नाइट्रोजन थे उस पांच में से मेरा
3 जो है वो बॉन्डिंग हो चुका है, लेकिन मेरे 2 पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के रह गए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर। बाय लोन पेयर क्योंकि वो अकेले हैं, और क्योंकि 2 हैं, पेयर 2 में जाता है, सो इट्स अ लोन पेयर। ओके, ऑल 3 NH कोवैलेंट्स आर पोलर इन नेचर। अब ये जो तीनों NH की बॉन्डिंग हुई है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, दे आर पोलर इन नेचर। ठीक है, वो क्या है? पोलर है नेचर में। N atom is more electronegative than H atom. Now जो N नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन एटम से। Thus the shared pair of electron lies more towards the N atom. इसी वजह से, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसके तरफ शेयरिंग वाली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहती हैं। This causes N atom to acquire a slight negative charge and H atom a slight positive charge. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, वो वाला ही नेगेटिव चार्ज लेगा, और जो कम होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज में जाएगा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो एक लोन पेयर है, तीसरे वाले पिक्चर में देखो नाइट्रोजन के दो लोन, एक लोन पेयर हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें एक नेगेटिव चार्ज आएगा और बाकी हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हमारी पेयरिंग हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो नाइट्रोजन के पास रहेगी। जैसे कि पहले पिक्चर में देखो, जो भी पेयरिंग हुआ ज़्यादातर इट इज़ नियरर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज़ नाइट्रोजन, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, और उसी के पास इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग रहेंगी, जैसे कि पहले पिक्चर में है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, नाउ इन वाटर, अब सेकेंड हम वाटर में देखेंगे। द टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच विद द ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म टू कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब क्या हो रहा है देखो, अब ये हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन पेयरिंग करी H2O में, क्या हो रहा है? एक ऑक्सीजन है जो कि दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या होगा? ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताओ, ऑक्सीजन कितने नंबर में आता है? 8 में आता है। तो 8 में आता है तो कितना हो गया उसका कॉन्फ़िगरेशन? 2 6 हो गया। तो अब 2 6 हो गया तो 6 बॉन्डिंग करेगी, यानी कि अगर मैं, मेरा 6 हो गया, यानी कि मेरे को अगर दो पर्टिकुलर को शेयर कर लेता है तो आई एम गेटिंग 8। माई ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज एट 10, ऑक्टेटोल एट 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे दो लोग पेयरिंग कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, दो हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की, तो इसका मतलब क्या हो गया? शेयरिंग की, यानी कि 8 हो गया ऑक्टेट का, उनका भी स्टेबल हो गया हाइड्रोजन दोनों, और ये लोग ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे दो पेयरिंग हुआ, ठीक है, दो पेयरिंग हो गया। लेकिन मेरे दो पेयरिंग होने के बाद मेरा 4 पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन का है अब भी वो बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दो कोवैलेंट के बावजूद मेरे दो लोन पेयर्स हैं। ठीक है, ओके। Now, water has two lone pairs. As you have seen, हमारे दो lone pairs बच गए, यानी कि 4 electrons. The two OH bonds are polar in nature. और यहाँ पे दो covalent bonds बना जो कि polar है nature में. Oxygen atom is more electronegative, और यहाँ पे जैसे कि नाइट्रोजन ज़्यादा electronegative था, यहाँ पे कौन ज़्यादा electronegative है? ऑक्सीजन। किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे जो ज़्यादा electronegative है उसको नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी की तरफ एटम्स रहेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव रेड इन NH3। द सेम गोज विद H2। H2 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन है? ऑक्सीजन। सेम। नेक्स्ट, नाउ विल बी रीडिंग melting point, boiling point and electrical conductivity. Now what is this? फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक पॉइंट है जहाँ पे मेल्ट होना चालू होगा, एक पॉइंट है जहाँ पे बॉयल होना चालू होगा, और एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट। सो कोवैलेंट कंपाउंड, जो भी पर्टिकुलर दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होता है, दैट इज कोवैलेंट कंपाउंड। अब हमने NH3 में पढ़ा, NH3 ज़्यादा, N वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके एटम्स भी जो है शेयरिंग करने के बाद भी N के पास ही रहेंगे। ठीक है, एक लोन पेयर जो बच जाता है, दो इलेक्ट्रॉन्स अगर बच जाते हैं तो वो लोन पेयर कहलाते हैं। ठीक है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव रेड। व्हाट वी रेड, अ पर्टिकुलर जो भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रो
कम इलेक्ट्रॉन, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास रहेंगे एटम्स, वही नेगेटिव चार्ज लेगा और दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज लेगा, दैट्स इट। और जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा वो लोन पेयर में आ जाएगा। दो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स बचेगा या फिर दो से ज़्यादा भी बच सकता है, तो वन लोन पेयर, टू लोन पेयर, एंड इट डिपेंड्स। नाउ कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। सो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग जब भी होती है तो उसमें कुछ नया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O बना, मॉलिक्यूल बनता है H2O, यानी बॉन्डिंग हो रही है H और टू, दो ठो HO के साथ बॉन्डिंग करके H2O बना रहे हैं। उसके बाद आ गया आपका CO2, वहाँ पे भी ऐसे बॉन्डिंग हो रही है NH3, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट इज दीज आर गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो ये आइदर लिक्विड हो सकता है, आइदर गैशियस हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। वॉट एवर यू आर पर्टिकुलर, जो भी कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है वो सॉलिड के लिए भी होता है, गैस के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी होता है, ठीक है। ओके, हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका जो होता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस लेकिन कम होता है क्योंकि आसानी से टूट सकता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पर्टिकुलर एटम्स, फॉर एग्जांपल NH3, NH3 के बाद जो भी पर्टिकुलर बॉन्डिंग है N और H के बीच में वो थोड़ा वीक होता है, ठीक है, वो आराम से टूट सकता है। नेक्स्ट इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी इतना अच्छी नहीं होता, और मोस्टली सोल्यूबल इन नॉन पोलर लिक्विड। तो नॉन पोलर लिक्विड फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर एंड ऑल, इसमें जो होता है सोल्यूबल रहता है। और आपका जैसे पेट्रोल और ये सब पोलर जो सॉल्वेंट्स है उसमें ये सोल्यूबल नहीं रहता, जैसे कि आपका हो गया फिनॉल एंड ऑल, ये सब पोलर है, और नॉन पोलर वाटर एंड ऑल है, तो ये दीज आर सोल्यूबल एंड नॉन पोलर, ओके। सो दिस इज व्हाट वी रेड टुडे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट, कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाला तो है नहीं। कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग में दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रह रहा है, और जो पर्टिकुलर एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी की तरफ पेयरिंग होती है, उसी की तरफ एटम्स रहते हैं इवन आफ्टर शेयरिंग। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है उसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ओके। एंड दैट इज इवन, जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं इवन आफ्टर शेयरिंग उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, एक दो या ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ये CO2 H2 NH3 सबके साथ होता है, ठीक है। हम बस बॉन्डिंग कर रहे हैं, हमें क्यों बॉन्डिंग करनी है, ताकि हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकें। जो पर्टिकुलर दो अटेंड करने से स्टेबल हो जाएगा वो स्टेबल कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन वगैरह को 8 चाहिए तो वो भी बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। और हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, खत्म हो गया। So that is all for today, and I hope that you liked today's session. If you have any doubt regarding any of the parts of this chapter, you may DM me in the comment section below. I'll definitely answer. Till then, I hope you're doing good, and I'll be seeing you in the next session with a new topic and new topic. Okay. Until then, have a good day. Keep smiling. Bye.